तेरा मंगल, तेरा तेरा मंगल हो मेरे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को, भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज रविवार का दिन, रविवार का जैसा कि आपको सबको पता है हमारा विशेष क्रम चलता है, तो आज भी हम एक विशेष टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। हमारे साथ नागपुर के जाने माने घुटना रोग विशेषज्ञ राहुल जी अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम नोएडा से रितु जी शाम सुखा भी जुड़ चुकी है। तो मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और टीपीएफ नोएडा की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मैं मंच रितु जी को समर्पित करता हूं। रितु जी, आप डॉक्टर साहब का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। रितु जी, शाम सुखा। आराध्य देव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी चारित्र आत्माओं को मेरा भाव भरा वंदन। जूम के माध्यम से जुड़े हमारे सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी पर्सनालिटी का इंट्रोडक्शन परिचय आप सबसे कराने जा रही हूँ। डॉक्टर राहुल अग्रवाल, आप एक orthopedic surgeon with specialization in joint replacement, non-union and complex trauma है। He has done his MBBS from Government Medical College, Akola, and did Masters in Orthopedic Surgery from Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, which is a central and most prestigious institute of India. He did fellowship in joint replacement surgeries at Sunshine Hospital, Hyderabad, which is again one of the top most institute for orthopedic and joint replacement surgeries in the world. He also has visited multiple renowned centers of orthopedics like Ganga Hospital, Coimbatore, for his surgeries and arthroscopy and sports medicine. He's also done his fellowship in complex trauma and non-union surgeries. So ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर राहुल जी अग्रवाल को। आपका सादर आमंत्रण।
Thank you all. Thanks, ma'am, for kind introduction. Thank you, organizers, for this wonderful opportunity. आप सबका समय और ना लेते हुए मैं अपना presentation शुरू करता हूँ. Yes. Okay. Shall I start? Yes. Yes. So good morning, everyone. स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव और 75वीं वर्षगांठ के लिए आप सबको बधाई. Today we are here to have a discussion on total knee replacement and myths and facts associated with it. I am Dr. Rahul Agarwal, MS Orthopedics. I am director at Dr. Agarwal's RK Hospital, Nagpur. So, for knowing about knee replacement surgery, we should know the anatomy of knee joint. Anatomy means अपने knee joint की बनावट. Knee joint जो है वो it's comfortable in Hindi, English, or it's okay. I will be mixing both language. It's fine. जी जी. तो knee joint जो बनता है अपनी 3 बोन से बनता है. It's femur, tibia and patella, जिसको हम कटोरी बोलते हैं. साथ में ये it is covered with soft tissue envelope from outside and having ligaments to balance the knee in inside. So what is knee arthritis? Knee replacement की जरूरत पड़ती है जब knee में arthritis होता है. So what is knee arthritis? जैसे हम देख सकते हैं, I will just show one model to you. This is normal knee joint having smooth soft bone at the end. When this smooth bone gets eroded because of any reason, so it leads to damage of this soft bone, which is called as articular cartilage. Over the period, it progresses from stage 1, mild, moderate, and it becomes severe. In severe, it will damage around 75% of articular cartilage. There will be formation of excessive bone, and patient won't be able to do his day-to-day activities, will have pain while walking, while bending, having recurrent episodes of swelling in the joint. And mostly his life will be dependent on either stick or walker or other family member. So that is knee arthritis. Let's know which condition leads to arthritis and further need of TKR. That is total knee replacement. The condition is osteoarthritis, in which knee joint get damaged. It could be primary or secondary. Primary means the reason, it's like from its own, the reason is unknown. Most commonly, it is age related. As the age progresses, our hairs get white, like degeneration, and similarly, aging happens in the knee joint as well. So that is cause of primary osteoarthritis. There are some other causes like secondary osteoarthritis. Sometimes someone suffers accident around knee joint and develop some type of trauma intra-articular and damages articular cartilage in future, which leads to arthritis of the joint. Other causes are like inflammatory arthritis. हम लोग सुनते हैं कि जैसे वात की बीमारी होना, पूरे बॉडी में जॉइंट पेन होना, तो वो उसको inflammatory arthritis बोलते हैं, जो कि जनरली यंग पेशेंट में होता है 20 से 40 साल की एज में, और वो भी जॉइंट खराब कर देता है, and that also needs TKR. Other causes are like tumor around knee joint, which sometimes damages joint and needs replacement of the joint. There are some risk factors which leads to arthritis, like as I said, increasing age, then obesity. If we can see, the weight of our whole body goes through knee joint being flat, perpendicular to the floor. Few kg increase in the weight leads to quantum amount increase in the pressure and the knee joint, which is directly proportional. Then female stature. In India, we can see there are like a lot of female having short and obese stature, so which leads to early degeneration of joint as well. Then some trauma around knee joint, infection in childhood or adulthood, or some occupational hazard, like in sports player we can see they have some type of trauma, recurrent trauma in the knee joint, and which leads to arthritis. One recent example is like Shoaib Akhtar, who was a fast bowler of Pakistan. Just recently, he had to undergo bilateral knee replacement because of repeated trauma around knee joint. So patient present to us with pain, swelling, restricted joint movements, stiffness, मतलब अकड़न आना,
और क्रेपिटस. क्रेपिटस मीन्स कट 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 की आवाज आना जॉइंट्स में, जो बहुत ही कॉमन है. After we examine the patient as they present to us, after examination we order for X-ray. So let's first see the normal X-ray. What is the normal X-ray of knee joint and how it looks? Here we can see this is a normal AP view of knee joint, and this is lateral view. In AP we can see there is equal joint space. What we can see here, there is no soft tissue, altered soft tissue shadow. Patella can be seen, distal end of femur and proximal end of tibia all are seen, and they are like synchronous to each other. In lateral joint we can see normal patellofemoral joint. There is no evidence of any osteoarthritis, no excessive bone formation, no osteophyte. So after looking in the X-ray, we just see if patient is having osteoarthritis and which stage. As I said, in early stage there will be only pain and X-ray would be normal. There will be damage to the cartilage, mostly less than 10%. Over the period, if patient doesn't modify its lifestyle and weight goes on increasing, doing repeated activity which leads to damage to the knee, that further damages the cartilage, and it progresses to stage 2, 3, and 4. In stage 2, there will be 10 to 25% damage to the articular cartilage. There will be narrowing of the joint space as well. Mostly start from inside, then follow on the lateral side and patellofemoral joint involvement as well. In third stage, it will be 25 to 50% cartilage involvement, and in stage 4, there will be more than 75% of cartilage involvement. We can prevent and progress the delay in early stages, but in stage 3 and 4, patient will end up in TKR, total knee replacement. So this is the X-ray of one of my patient. She was 77-year-old and had she was not walking for last 3 months, and she presented to me with severe restriction of movement and bilateral knee joint pain. When I took her X-ray, it was grade 4 arthritis. Here we can see there is no joint space remaining. Excessive bone formation is there, which is called as osteophyte in AP view. In lateral view, we can see patellofemoral joint is completely obliterated. There are excessive bone formation. So after explaining everything to patient and their relative, I did her TKR, bilateral knee replacement. So this is her post-op X-ray of the right knee joint. Here we can see that damaged defective part I have removed, and smooth surface of knee has been restored by putting the foreign implants. That is for femur, for tibia, and patella I did resurfacing, patelloplasty. Same for right and left knee. So this is an example where many cases we can see in old age, patient would be walking like duck-like gait, this like bowing of knee, and after in X-ray we can see the grossly damaged knee joint. And after doing TKR, their alignment gets straightened, and they can live painless life further. This is the example of inflammatory arthritis having knock knee, like knee and leg deviated outside. So this patient also needs TKR, and after TKR, we can see their alignment gets straightened. So what is total knee replacement? Actually, it's not replacement, it's a resurfacing. Resurfacing means just removing the damaged cartilage, 8 to 9 mm of bone get removed, and we put with metal, smooth surface, both for femur and tibia. An intermittent space, what we used to see in normal X-ray, here we put poly on that, like it's a plastic material, which allows smooth gliding of femur over tibia. And this is the knee replacement, nothing else. So let's see, there are many facts and myths about knee replacement. This was brief on total knee replacement. Now let's see facts and myths. So there are many facts, many myths in the society, like age. I am too old. How I can go for knee replacement? My body is not ready for that. So this is like big myth. Knee replacement can be done for any age, as age is just number. If patient is fit and having grade 4 arthritis, then patient can undergo knee replacement without any worry. Similarly, sometimes we need to do knee replacement in very young age. So again, there is myth that I am too young, I will need multiple surgery throughout life, it will be painful and it won't be possible for me. So that is also one myth. Knee replacement is possible for too young as well, which are like post-traumatic cases, inflammatory arthritis cases. We have to do knee replacement in such patient for a painless, productive life. So, and that after that patient can join their day-to-day activity
and if in future it requires, we can replace that as well. Second myth is like, oh nahi, I won't go for knee replacement, मैं अपाहिज हो जाऊंगी, मैं किसी पे डिपेंडेंट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, how I will do my day-to-day activity. So it is very big myth in the society. One can do independent activity, one can drive car after knee replacement, one can do walking how many kilometers he or she wants, one can do cycling, one can do steps, so any number of time ups and downs, and non-contact sports like swimming also they can join after knee replacement. There is one myth also, it will be very much painful, no, I don't want knee replacement surgery, I won't be able to bear the pain. So this is also a big myth. Now with modern science and technology, we have developed so much that knee replacement surgery is absolutely painless. What we do in our setup, we do surgery in spinal anesthesia and we put one epidural catheter as well. That leads to take care of pain of patient for next 3-4 days, followed by so many good analgesics are available which are non-nephrotoxic, non-hepatotoxic, and patient starts their physio right from the next day from the surgery. So it's like no pain after surgery. It's a painless procedure. Previously we used to say no pain, no gain. Now complete gain without pain. Then one myth is there are it will be like there is high risk of failure, how it will survive, I am getting knee replacement done and it won't last much, it will be problematic for me for throughout life. So in research we have found out that there is very minimal risk for knee replacement surgery wherever you can get it done. Like any center in the world, there is hardly 1 or 2% of risk. And let me assure you, if there is no infection, post-op infection, which is possibility, and that risk is like 1 to 2%. If there is no infection in perioperative period, then knee replacement lasts for long. It lasts. If patient is getting knee replacement done at later stage of life, then it lasts for till the patient lives. So risk with surgery is very limited these days. So myth is like knee replacement won't last long. How I will get it done, how I will survive after knee replacement. So in research, we have found out that more than 90% of knee last for more than 15 years and 85% of knees last for 25 years. So that is big number. If patient is getting the knee replacement at around 60, 65, 70, mostly she or he won't need any replacement further. Then one more myth is there that revision of knee is not possible. Once it is get done, it got done, I won't be able to do it again. So that is also one myth. Sometimes complications are related with each and every procedure. Sometimes if primary knee doesn't last, or it's like get loosened or infection or anything, revision is possible. So many good modern technology implants are available. So smooth knee replacement surgeries are getting done day in, day out, and patient can join their activity once again. One more myth is there in the society, like I am having diabetes, I'm having hypertension, how can I go under knee replacement? There will be high risk. So many now these days, diabetes, hypertension, or any other comorbidity are not contraindication for knee replacement. Reason being, so safe drugs are available. We evaluate patient completely before knee replacement. We normalize their blood sugar level, their BP, we take care of their cardiac status. After doing everything, we plan and get the surgery done. So there is no contraindication for diabetes, hypertension, or any other comorbidity for knee replacement. One more myth is there in society that foreign body is will get inserted in my knee, in my body. How I will live with foreign body? It will irritate, it will cause reaction. So let me assure you, these foreign bodies are patient-friendly material. They don't cause any harm to our body. They otherwise they live in synergy with the body. They just remove your pain and stay with you as your best friend. With those implants, patient undergo CT or MRI or any other procedure in the future if they require. So just remove from your mind that there are too many side effects or foreign body with the foreign body getting inserted. Then one more myth is there. It's like so big surgery. It's like
getting liver transplant or renal transplant done. So as I said earlier as well, it's not replacement, it's just resurfacing or repair. Knee replacement, the term is misnomer. What we do, just remove the damaged cartilage, damaged end of the bone, and put it with the smooth surface, and it just remove your pain. So we should not compare knee replacement surgery with like renal transplant or liver transplant. In those surgeries, patients have to take steroids for a long time. They have to take immunosuppressant medicines, so that affect their whole body. But in knee replacement, patient can just start their activity from next day. One more myth is there. I will need physiotherapy throughout life. So that is also wrong. Patient will need physiotherapy till they join their, they just get comfortable with the new knee and join their day-to-day activity. Patients discomfort will last for around 1.5 months. Pain will go from next day. And as muscle gets strengthened, patient's gait pattern get normalized. That takes around 1.5 to 2 months. Patient can live their life without any help of anyone. So take home message from my presentation: forget myths about total knee replacement. Only remember the fact that it can be done very safely and very effectively. Definitely, it improves the quality of life. Replacement doesn't add years to your life, but life to remaining years. Thank you. डॉक्टर साहब, आजकल ये आम देखने को समस्या मिलती है कि छोटी उम्र में ही लोगों की जो चलने की चाल बिगड़ जाती है, चाल बिगड़ जाना घुटनों की प्रॉब्लम के वजह से, तो क्या इसका भी हम सही तरीके से इलाज करवा के हमारा चलने की जो स्टाइल है वो वापस ठीक हो सकती है? Yes, very good question, sir. The problem is absolutely what you said. What we are seeing now, early osteoarthritis, that grade 1 osteoarthritis is getting started in the age around 35-40, which used to be there before 55-60. So many reasons are there for that, like sedentary lifestyle, less activity outside. These days we are not seeing childs playing outside. So this and obesity, these all leads to pressure on the joint and damages the joint. And actually, since childhood, from childhood, in anyone's case, there is like waxing and waning, like knee or any part of the body get damages and that get repaired by its own. So, but at particular age, that repairing power gets reduces, and there are so many reasons for that. One of them is bad food habits, poor lifestyle, sedentary lifestyle, loss of physical activity or no physical activity, and these all leads to comorbidity as well, like diabetes, hypertension at early age. All these problems act together and damages the knee at early stage. That is one reason. Other is like inflammatory arthritis, वात जो मैंने बताया, जो कि सूजन की बीमारी रहती है, वो जेनेटिकल फैक्टर भी रहता है, तो बहुत कम उम्र में घुटने खराब हो जाते हैं, तो ये एक रीजन हो गया. सेकंड, देन स्पोर्ट्स एक्टिविटी. जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं उनके घुटनों में या दूसरे जॉइंट्स में बार बार डैमेज होते रहते हैं. हम लोग देखते रहते हैं अपने क्रिकेट प्लेयर्स, डैमेज होता है 3 महीने 6 महीने के लिए बाहर हो जाते हैं, फिर वापस ज्वाइन करते हैं. तो ये रिपीटेड ट्रॉमा भी नी जॉइंट को या कोई और जॉइंट को डैमेज करता है. तो ये सब केसेस में अर्ली नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है. देन जो गेट पैटर्न की आप बात कर रहे थे, जो चलने का सही तरीका नहीं होना, तो कुछ ना कुछ रीजन से नी में डैमेज होता है, उसको अपनी बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए पेशेंट थोड़ा सा अलग तरीके से चलने की कोशिश करता है. दैट लीड्स टू डिफरेंट गेट पैटर्न एज वेल. यस, सो जो आप गेट पैटर्न की बात कर रहे थे, so that's like because of some trauma or some injury in the joint, so वहां पे अपनी बॉडी नेचुरली प्रेशर कम देना चाहती है, तो फिर थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है, तो उस वजह से दूसरे पार्ट को भी डैमेज होता है. so these all things leads to early damage. so the best way, get the consultation done early and get resolve the whatever problem is there in the joint. लिए घुटनों के लिए कुछ खास एक्सरसाइज जो हमें करनी चाहिए? Yes, isometric exercises are very good for knee joint. Isometric exercise means like cycling, walking and swimming. These exercises are very good. This leads to
रीजनरेशन ऑफ फ्लूइड, व्हाट वी कैन, जो हम बोलते हैं जॉइंट के अंदर, घुटनों के अंदर तेल या फिर ग्रीस जो बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो बनता है और वो जो अपने घुटनों में जो डैमेज होता है उसकी रिपेयर में मदद करता है जी। और जो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स है या जैसे जंपिंग, जॉगिंग, रनिंग, वो अवॉइड करना चाहिए। स्टेप्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करना, जो भी इम्पैक्ट वाली चीजें है वो अवॉइड करना चाहिए, और जो आइसोमेट्रिक जैसे स्मूथ मूवमेंट वाली चीजें वो बढ़ाना चाहिए, उससे नी की लाइफ बढ़ती है। वेरी गुड। अभी जैसे बुजुर्ग लोग हैं 60 के ऊपर, तो उनको, जिनको भी थोड़ा सा भी घुटने का दर्द महसूस होता है तो उनको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। यस, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल। अर्ली स्टेजेस में, जैसे 60 साल की उम्र में किसी को घुटने का दर्द शुरू हुआ है तो मोस्टली वो स्टेज 1 या स्टेज 2 रहेगा। तो इन सच केसेस विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड विथ फ्यू मेडिकेशंस वी कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ नी फॉर नेक्स्ट 10 or 15 years. And if that happens, that will be like if patient will require knee replacement at the age of 75, जब अपनी लाइफ की अपनी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा नहीं रहती, इन द सेंस अपने को बहुत ज्यादा विगरस एक्टिविटी नहीं करना होता है, हम अपने काम करते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ जीते हैं, तो वो समय पे यदि नी रिप्लेसमेंट किया जाए तो फिर वो थ्रू आउट लाइफ उनको शायद एक ही बार करना पड़ेगा एंड ही विल बी लिविंग पेनलेस लाइफ थ्रू आउट। बहुत बढ़िया। तो अभी बहुत सुंदर जानकारी हमें मिली। हमें आपके अनम्यूट ऑप्शन सबके लिए दे रहा हूं। जिस भाई बहन की भी कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी समस्या हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। मैं सभी के अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। यस। जय जिनेंद्र सर, में ज्यादा टाइम बैठने 3-3, 4-4 आवर बैठेंगे तो कुछ घुटने में प्रॉब्लम हो सकता है क्या? सर मैं वो वर्ड नहीं सुन पाया आपका। किस आसन में? सुखासन में बैठते हैं अपन, मांडी डाल के जैसे मेडिटेशन करते हैं, ज्यादा लंबा समय एक आसन में बैठना होता है। व्हाट आई सजेस्ट, देखिए यदि गेट द कंसल्टेशन डन, इफ अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है तो विथ मसल स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज यू कैन कंटिन्यू। यदि आपके घुटनों में डैमेज शुरू हो चुका है, देन आई एडवाइज टू अवॉइड क्रॉस लेग सिटिंग, स्क्वेटिंग, because those progresses the knee damage further. यदि आपको पेन शुरू हो गया है, इसका मतलब अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रहा है, then you should avoid those things. Get the knee, muscles around knee strengthen and you will reduce your problem. और ज्यादा चलने से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? नहीं, वॉकिंग बहुत ही अच्छी है घुटनों के लिए। वॉकिंग से जो डैमेज है वो रिपेयर होता है। और सीढ़ी नीचे ऊपर करते तो समझो वो अच्छा नहीं है, वो इम्पैक्ट करता है घुटनों पे, डैमेज घुटनों पे इम्पैक्ट होता है तो और तकलीफ बढ़ती है। अच्छा, थोड़ा बहुत किया तो नहीं होता है प्रॉब्लम, लेकिन बार बार यदि वो होता है तो फिर दिक्कत देता है। ओके सर, थैंक यू। यस। कुसुम जी दुगड़ ने अपने आप कंक्लूड किया। कोलकाता से कुसुम जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, नमस्ते। मैं ये कह रही थी, मैंने तो नी रिप्लेसमेंट करवाया है। अभी मैं 64 साल की हूँ और मेरे को प्रॉब्लम 10-12 साल पहले से ही थी, तो ऑपरेशन भी मैंने उसी समय करवाया और उससे पहले 7 साल मैंने दर्द भोगा। ओके। डॉक्टर साहब को दिखाई थी, दर्द का दवा लेती, शर्म से किसी को कहा नहीं कि मेरे घुटने में बहुत दर्द है। अब लास्ट में ऐसा हुआ कि बाथरूम तक जाना बहुत तकलीफ दे हो गया। तब फिर मैंने, मेरी बहन डॉक्टर अहमदाबाद में, तो उनको बताया, तो वो उन्होंने बुलाया मुझे तुरंत वहीं पे, तो वहां पे मेरे नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट किया मेरे को। तो दोनों घुटनों में मेरा हो गया है नी रिप्लेसमेंट। आज हुए मेरे को, एक घुटना को हुए 10 साल हो गए, एक को 5-6 साल हो गए। राइट। तो अब मेरे को मतलब उस वक्त तो मेरे को फिजियोथेरेपी और बोला गया था, लेकिन अब मैं खाली मॉर्निंग वॉक थोड़ा सा कर लेती हूँ। ज्यादा चलने से थोड़ा सा नसें वगैरह खड़ी हो जाती है, खड़े रहने से भी नसें खड़ी हो जाती है, ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते हैं, लगता है कि बैठ जाएं। और हाँ, और मतलब चलना तो मैं चाहती हूँ लेकिन ज्यादा देर चल नहीं पाती, फिर बैठ के 2 मिनट 3 मिनट फिर चलने लगती हूँ। ऐसा क्यों होता है? प्लीज गेट वन कंसल्टेशन डन with orthopedician near you. Let them check your x-ray again and examine clinically your knee. जी, एक्सरे कराया था मैंने, चेक करवाया था, तो देखिए एक्सरे तो अभी ठीक ही लग रहा है। नी रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ है। फाइन, नहीं वो अच्छा ही होगा। मसल स्ट्रेंथनिंग का इशू रहता है कई बार। हाँ, जो आप बता रहे हैं ना, अपने मांसपेशियां थक जाते हैं। पहले भी था, जब मैं ज्यादा देर खड़ी होगी रोटी बनाती, तो मतलब कंटिन्यू 20 मिनट 25 मिनट खड़ी रही तो ऐसे नसें खड़ी हो जाती एकदम। राइट। जो आप बता रहे हैं ये तकलीफ मांसपेशियों की है, घुटनों की वजह से नहीं है मोस्टली। तो आप अपनी यस,
मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लीजिए, अच्छा एंड गेट द विटामिन D3. मोस्टली विटामिन D3 कम रहता है, विटामिन D3 का सप्लीमेंट ले लीजिए एंड योर प्रॉब्लम विल गेट रिड्यूस मोस्ट प्रोबेबली. अच्छा, मेरे को एक्सरसाइज तो घुटनों का सीधे पैर फैला के ऐसे ऊपर नीचे करने का बताया था, राइट. और कोई विशेष कोई एक्सरसाइज नहीं बताया था, और घुटनों को मोड़ना और फैलाना बस, और कुछ नहीं, और वॉक करना बोला था. राइट. एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से फिर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज से बहुत फर्क पड़ जाता है. यस. डॉक्टर साहब, ये चैट बॉक्स में सवाल आया है एक अंकिता जी बंसल का, घुटनों के बल अगर गिर जाए तो ठंडे आइस से सेक करना चाहिए या गर्म सेक करनी चाहिए? राइट. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. This is like very much common doubt in the public. So हम जस्ट सिंपल में एग्जांपल से बताता हूँ. कभी हमको चटका लगता है तो अपना जो जहाँ पे भी चटका लगता है वो पार्ट गर्म हो जाता है, मतलब वो पार्ट लाल हो जाता है. लाल क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे खून का सप्लाई बढ़ता है, तो मुश्क लगती है तो वहाँ पे सूजन आती है. सूजन आने के कारण होता है वहाँ खून का सप्लाई बढ़ जाता है. तो वहाँ अक्यूट कंडीशन में, अक्यूट मतलब जैसे कभी मोच लग रही है या कुछ चटका लग रहा है, तो वैसे कंडीशन में जैसे बताया इन्होंने, हम गिर गए और घुटनों पे लगा है, तो ऐसे में बर्फ की सिकाई ज्यादा काम करती है. उसके दो फायदे, पहली चीज दर्द कम होना, सेकंड चीज सूजन कम होना. बर्फ की सिकाई करने से वहाँ का ब्लड फ्लो कम होता है, सूजन कम होती है. हम कभी अपने हाथ में बर्फ लेते हैं, थोड़ी देर पकड़ते हैं तो अपनी उंगलियां सफेद हो जाती है, देखेंगे आप. उसका कारण ये होता है कि वो एरिया का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है. सेकेंड चीज, गर्म पानी की सिकाई कब करनी है? गर्म पानी की सिकाई जैसे हमको मोच है, कमर का दर्द है बहुत समय से, स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, या घुटनों का दर्द है, नी आर्थराइटिस बोलते हैं, वैसे केसेस में सूजन नहीं रहती है. ऐसे में मतलब वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है हमको बढ़ाना है ताकि वहाँ के टॉक्सिन्स वॉश आउट हो जाए. तो गर्म, जैसे बताया मैंने, कुछ भी चटका भी लगता है तो वहाँ पे लाल हो जाता है, लाल होने का कारण ब्लड फ्लो बढ़ना. तो वैसी चीज जब हम गर्म पानी की सिकाई करते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ के टॉक्सिन वॉश आउट होते हैं, और गर्म पानी की सिकाई से भी दर्द कम होता है. तो दोनों फायदे हैं. यस. थैंक यू सर, ये मेरा भी क्वेश्चन था. यस. बहुत बढ़िया. सुमन जी ने अपने आप को, सुमन जी पवार ने अपने आप को अनम्यूट किया है. पूछिए सुमन जी, आपकी क्या जिज्ञासा? यस मैम, प्लीज. नमस्ते. नमस्ते. सर, मेरे पिताजी को ना घुटनों का दर्द है, उनको चलने में भी तकलीफ होती है और ऐसे कट कट करके आवाज आती है सर. राइट. तो मतलब क्या करना चाहिए उसके लिए? एज कितनी है उनकी? एज उनकी ज्यादा है, 75 से आगे. ओके. मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस ही रहेगा उनको, एज रिलेटेड डिजनरेशन जो होता है जॉइंट का. So get the consultation done, get the X-ray done, let the doctor examine him clinically, कितना movement है, कितना चल पा रहे हैं, and let him find out the stage of degeneration, and accordingly he will guide you the treatment as well. As I just said in my वॉकिंग करते सर, डेली 1 आवर्स घूमते हो, चलते हो, वॉकिंग के लिए बोला डॉक्टर. That is very good actually, walking is good, लेकिन पेन है और उसमें वॉकिंग करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा. तो कई बार हम लोग सिंपल पेन किलर देते हैं. वॉकिंग बंद करना तो नहीं एडवाइस करते हैं, यदि बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है तो थोड़े पेन किलर देते हैं, फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, और फिर उनको बोलते हैं कि साथ में वॉकिंग करो. यदि स्टेज 4 है तो फिर रुक के मतलब नहीं है. 75 एज है ऑलरेडी, गेट द नी रिप्लेसमेंट डन एंड ही विल लिव हिज लाइफ वेरी नाइसली, एक्टिवली एंड इंडिपेंडेंटली. सर, जॉइंट पेन के लिए हेल्दी फूड क्या लेना चाहिए जो डाइट से भी अच्छा हो सके? एक्चुअली अलग से जॉइंट्स के लिए कोई फूड बोल के ऐसा नहीं रहता मैडम. वन शुड टेक केयर ऑफ हिज कैल्शियम, विटामिन D3 लेवल फॉर बोन्स. सेकेंड चीज, फैटी डाइट अवॉइड करना चाहिए, प्रोटीन डाइट ज्यादा लेना चाहिए. रीजन बीइंग कि वेट कम होना चाहिए, मतलब वेट की डायरेक्ट इंपैक्ट है नी जॉइंट पे, और प्रोटीन इंटेक से मसल स्ट्रांग होते हैं, तो दैट विल टेक केयर ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स अराउंड द नी जॉइंट. जी थैंक यू सर. आनंदमल सर का भी बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू. सर एक चीज तो मेरा भी एक क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं. यस मैम. बोल रही थी कि घुटनों का जब जेल सूख जाता है तो वो जो डॉक्टर साहब हड्डी में सुई लेने बोलते हैं, वो हमको डर लगता था, वो लेना चाहिए कि छोड़ देना, अवॉइड करना चाहिए? सॉरी प्लीज कैन यू रिपीट दोबारा? हाँ, मैं ऐसे पूछ रही थी, घुटनों का जब जेल सूख जाता है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं घुटने खराब हो रहे हैं. हाँ. जेल सूखता है क्या? वो जेल सूखना नहीं होता एक्चुअली मैडम. ये क्या होता है, जनरली थ्रू आउट लाइफ वो बनते रहता है, फिर निकलते रहता है. मूवमेंट नहीं होता है फिर बाद में? मूवमेंट नहीं होता है. हाँ, मूवमेंट नहीं होने का रीजन यही रहता है कि जो हड्डी घसना, आपके केस में तो नी रिप्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है,
हाँ, तो वो स्टिफनेस का रीजन समथिंग मस्कुलर क्रैम्प रहेगा। जी। तो जस्ट टेक केयर ऑफ मसल क्रैम्प एंड मसल पेन, योर नी विल बी फाइन। और माँ को है इसलिए पूछ रही थी। आपकी सासू मम्मी को को? मम्मी नहीं, को तो वही सासू माँ को, सासू माँ को सासू माँ। एज So है she उनका, ओके 84 उनको एज है। 84 ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस रहेगा डेफिनेटली उनको। ये एज में कैसे रहता है, वही जो घुटने घस गए जैसे आपके हुए थे, राइट? तो डेफिनेटली उनके भी हुए ही होंगे, और आप यदि उनका फर्दर चेकअप कराएंगे तो वही निकलेगा। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन। एज रिलेटेड डिजेनरेशन सभी को होने वाला है। इतना एज में नी रिप्लेसमेंट हो सकता है? पेशेंट क्लिनिकली फिट है तो बिल्कुल हो सकता है, मतलब है ना, पेशेंट यदि अपने काम सब कर पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब वो फिट है, तो बिल्कुल हो सकता है नी रिप्लेसमेंट। ओके, यस। और किसी की भी कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट ऑप्शन अभी सबके दिए हुए हैं। रितु जी, शामसु का कोई जिज्ञासा हो तो आप भी पूछ सकते हो। रितु जी। हाँ, एक्चुअली मेरी भी अभी मदर इन लॉ का ये नी रिप्लेसमेंट का हुआ है, और दोनों ही नीज का करवाया उन्होंने। राइट। तो वैसे तो सब अच्छा ही हुआ है, रिकवरी अच्छी रही है उनकी। अभी इन दिनों ना उनको थोड़ी सी भूख वगैरह नहीं लगती है, मतलब डाइट बहुत ज्यादा ही उनका कम हो गया, तो उनको लग रहा है क्या है, कोई इससे रिलेटेड तो कोई इश्यू नहीं है, क्या हो रहा है मेरे साथ। मोस्टली नहीं तो वो रहता है, बड़े रहती है। हाँ, थोड़ा सा समय लगता है कभी कभी नॉर्मल रूटीन में वापस आने में। हाँ, पेट मोस्टली में भी ना थोड़ा सा वो कंप्लेन करती हैं कि ऐसे कभी से गैस्ट्रिक भी फील हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मोस्टली गैस्ट्राइटिस वगैरह हुआ रहेगा उनको, जो कि कॉमन है। हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं सर्जरी के दौरान या आसपास में, उससे गैस्ट्राइटिस होना बहुत ही कॉमन है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट अच्छा, इज गेट द फिजिशियंस कंसल्टेशन डन, so that will be better. अच्छा, If that will take care of gastritis and she will be fine. अच्छा, अच्छा, थैंक यू। Yes. जय श्री कृष्ण सर। मेरे को ना कभी कभी गोड़े में थोड़ा सा दर्द होता है, कंटिन्यू नहीं रहता है, तो Okay. उसमें भी कभी वजह से मैं बैठ सकते हैं या नहीं? ऐसा मेरे को प्रॉब्लम तो कुछ होता नहीं, लेकिन कभी कभी कंटिन्यू ऐसा लटका के बैठने से Long कभी sitting में प्रॉब्लम होगा आपको। तो ऐसा, तो ये कोई आगे Early जाके osteoarthritis if is there, I will advise you to avoid all those positions. देखिए, हम योगाभ्यास की क्लास हम लेते हैं तो हमें ये बात पहले बोलते हैं, जिनके घुटनों में दर्द है वो घुटनों के बल बैठकर वज्रासन में ना बैठे, सावधानी रखें, ये बात हम पहले बोलते हैं। वज्रासन किनके लिए है? जो जिनके घुटनों में कोई तकलीफ नहीं है उनके लिए। वज्रासन में हम घुटनों को बैंड करके बैठते हैं, हमारे उससे हमारा पाचन अच्छा होता है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है उनको हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो वज्रासन हर एक के लिए उपयोगी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो भी नहीं बैठना चाहिए सर? हाँ, सावधानी रखना चाहिए। आप है ना, आपने जो भी योगा ट्रेनर है उससे बात करके, योगा टीचर से बात करके आप आसनों का अभ्यास करें। जिनके घुटनों के जिनको प्रॉब्लम है उनके बहुत से आसन में हम मना करते हैं, ये आसन आपको नहीं करने हैं। जिनको बैकबोन में प्रॉब्लम है उन्हें आगे झुकने के लिए हम प्रॉब्लम जैसे मना करते हैं। तो इस सब चीज, हर एक की चीज की सावधानी जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, आजकल कम उम्र में वजन बढ़ जाना आम बात हो गई है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन हो गई है। तो इसके लिए क्या करते हैं आजकल के युवा या बच्चे? एरोबिक, जुम्मा और ये सब जाते हैं और वहाँ शरीर की कैपेसिटी से अधिक वो वर्कआउट कर लेते हैं कभी कभी, तो that also leads to problem. तो उनको अभी कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन आगे चल के उनको मुश्किल बढ़ेगी उनकी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ये जो एक्चुअली इसलिए डाइटरी हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्ली स्टेजेस से। हम लोग कितना खेलते थे पहले, बाहर घर में, खाने पीने का जो खाते थे सब पच जाता था। अब ऐसा है ही नहीं। एक तो सही में क्वालिटी ऑफ फूड अच्छी नहीं है, सैचुरेटेड फैट बहुत खाते हैं हम लोग। पहले जो था अनसैचुरेटेड फैट रहता था, जो घर का घी और तेल वगैरह रहता था, तो वो सब हेल्दी भी रहता था और पच भी जाता था। अभी ये होता है कि सब जमा होता जाता है, फिजिकल एक्टिविटी रहती नहीं है, भूख लगती रहती है, खाते रहते हैं बिना रुके, तो वेट बढ़ता है। वेट बढ़ के फिर बॉडी के सभी पार्ट्स में प्रॉब्लम होना शुरू होता है। डेफिनेटली हार्ट में प्रॉब्लम आता है, मसल्स वीक होते हैं, फैट बढ़ता है, मसल प्रोटीन कम हो जाता है, बीपी भी बढ़ जाता है उससे। यस,
सब चीजें तकलीफ बढ़ती जाती है। तो गुड लाइफस्टाइल इज वेरी नीड ऑफ आवर। एंड आप लोग जो योगा सेशंस लेते हैं, योगा क्लासेस जो आप बोल रहे हैं, ये एक्चुअली ओल्ड मतलब लेटर एज में नहीं लेके अर्ली स्टेजेस से शुरू हो जाना चाहिए। सबको आदत होना चाहिए इस चीज की। तो दैट इज लाइक टाइप ऑफ स्पोर्ट्स ओनली, so that will take care of all these things. ठीक। मैं तो एक चीज हमेशा डॉक्टर साहब सबको कहता हूँ, आसनों का अभ्यास जो करते हैं, योगाभ्यास, उसमें जो सूक्ष्म योग है, जो जिनको हम योगिक क्रिया कहते हैं, उसमें घुटनों के लिए बहुत सी क्रियाएं बताई गई है, बहुत सी क्रियाएं हैं जिसमें हम ब्रीदिंग के साथ स्लो मूवमेंट देते हुए एक्सरसाइज करवाते हैं। अच्छा। वो क्रियाएं हैं सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, जो सूक्ष्म योग जिसको कहा गया है योग की भाषा में। और उसमें ब्रीदिंग के साथ हर कोई क्रिया ब्रीदिंग के साथ होती है, तो उसमें हमारे श्वास के साथ हर प्रक्रिया को जोड़ा जाता है। घुटनों के लिए बहुत सारे ऐसी क्रियाएं, ऐसे सूक्ष्म योग बताते हैं हम, गर्दन के लिए, कमर के लिए, हर अंग के लिए अलग अलग क्रियाएं बताई गई है, जिसके यौगिक क्रिया या सूक्ष्म योग कहा जाता है। तो उसकी क्लासें हमारी निरंतर चलती है, हम करते भी है, करवाते भी है। हमारे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं सब इसका अभ्यास भी करते हैं, और निश्चित रूप से उन्हें फायदा भी हो रहा है। बहुत। और किसी की कोई जिज्ञासा हो, अपने आप को अनम्यूट करते हुए आप बात कर सकते हैं। यही है वो प्रेम बोधरा। हाँ प्रेम जी बोलिए। नमस्कार, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज, बहुत अच्छा लगा सुन करके, और जानकारी मिल रही है उसके बारे में। और भी आपको धन्यवाद आनंद जी भाई साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीछे से दे रही हूँ लेकिन ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, शुरू से लेकर आखिर तक एक एक चीज जो खोल कर बताई ना, बहुत अच्छा लगा। सर ओम आराम सर, ओम आराम। कल आपका जन्मदिन था सर, मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेजा भी था मैसेज, आप नहीं देखे सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई सर। और आजादी के अमृत महोत्सव की भी सभी को बहुत बहुत बधाई सर। और डॉक्टर सर ने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी, उनके लिए भी सर का थैंक्स। सेठिया जी आपको जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू जी। ईशा जी, डॉक्टर ईशा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई है। ईशा जी जी सर। हाँ, सुधा जी ने अपने आप को अनम्यूट किया, पहले सुधा जी से हम बात कर लेते हैं, फिर हम डॉक्टर ईशा से बात करेंगे। बोलिए। सबको जय जिनेंद्र, आपको जन्मदिन की बधाई। और डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ अच्छा बताया, और मैं 20 साल से कर रही हूँ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं कर रही हूँ कि वॉकिंग 10,000 स्टेप में डेली करती हूँ। वज्रासन में 1 आवर 2 आवर ऐसा बैठती हूँ। जो 2-3 नहीं हो सकते वो नहीं करती, लेकिन मैं सुबह 2 घंटा, शाम को भी करती हूँ, वज्रासन भी बैठती हूँ, वॉकिंग करती हूँ। मेरी हेल्थ एकदम अच्छी है, मेरे को मेडिसिन कुछ भी नहीं है। मेरी भी 70 अभी चालू है, रनिंग 70 ईयर्स है। डॉक्टर ईशा अग्रवाल प्लीज अनम्यूट। बोलिए। कोई नहीं सर, मुझे पता ही नहीं था, अभी पता चला कि आपका कल जन्मदिन था करके। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी। डॉक्टर साहब के साथ बहुत ही शानदार चर्चा सत्र अभी बहुत अच्छा हमारा चल रहा है, और बहुत सी बातें हमें नई बातें जानने को मिल रही है। डॉक्टर ईशा जी, आपका सेशन भी बहुत ही शानदार हुआ था, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम आगे भी आप लोगों का मार्गदर्शन इसी तरह लेते रहेंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। शायद अब किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम समापन की ओर चलेंगे। सारी जिज्ञासाओं का समाधान तो अपने आप ही हो गया जी। इनका जो लेक्चर था उसमें सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो ही गया था हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने सारी जिज्ञासाओं का समाधान किया था। हाँ, तो ये चीज एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 10 साल पहले जब मैंने योगाभ्यास नहीं करता था, 10 साल पहले मैंने आज मेडिटेशन और योगा शुरू किया, उससे पहले मेरा वजन 92 किलो था, और मैं नीचे नहीं बैठ पाता था। हम लोग जब प्रवचन में जाते हैं या कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो कुर्सी पे बैठकर मैंने प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता था, नीचे बैठ नहीं पाता था।
और जब से मैंने योगाभ्यास मेडिटेशन शुरू किया उसके बाद मेरा वजन धीरे धीरे कम होते होते आज वजन आप खुद देख रहे हो। और अभी मैं हमारे शिविरों में सुबह से लेकर शाम तक शिविर में कार्यक्रम चलते हैं। सुबह 4:30 बजे हमके उठकर शिविर में अटेंड होना होता है। रात को 9 बजे तक प्रोग्राम चलते हैं। पूरे प्रोग्राम में नीचे बैठकर पद्मासन लगाकर अटेंड करता हूँ। ये 10 साल के अंदर मैं ऐसा समझता हूँ 60 साल पहले 60 साल की उम्र में जो स्थिति थी आज 70 में मैं उससे बहुत ज्यादा अपने आप को यंग महसूस कर रहा हूँ। और ऐसा लग रहा है मेरी उम्र 10 साल कम हो गई है, मैं ये फील कर रहा हूँ। तो योगाभ्यास कितना हमारे लिए जरूरी है आपने भी अभी सुधा जी ने भी बताया। और ये योगाभ्यास और मेडिटेशन डॉक्टरों से हमें दूर रखती है। डॉक्टर साहब आप पुराना वाले हैं मैं डॉक्टरों से दूर रहने के तरीके बताता हूँ भाई हम डॉक्टरों से कैसे दूर रह सकते हैं। और तो मेडिटेशन और योगाभ्यास हमारे लिए कितना जरूरी है और हमारे आचार्यों ने हमें इतना शानदार तरीका बताया है। राजेश जी पुगलिया अभी बेंगलोर में वो भी जुड़ चुके हैं। मैं राजेश जी से भी निवेदन करूंगा, राजेश जी अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग ऑल। बेहतरीन प्रोग्राम सर, बहुत ही सिंपलिस्टिक शब्दों में आपने जितना मार्गदर्शन किया है वो काबिल तारीफ है और मजा आ रहा है सर। राजेश जी थैंक यू। लगता है सर एक दूसरा थोड़ी सी अगर दूर कर सकते हैं तो किस स्टेज में नी के कौन से सिंबल से हमें डॉक्टर के पास तुरंत रीच करना चाहिए? तुरंत रीच मतलब जैसे अर्ली इवन इन अर्ली स्टेज कोई भी पेन को अर्ली स्टेज में निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। यदि हो रहा है गेट द कंसल्टेशन डन, गेट द चेकअप डन। अर्ली स्टेजेस में नी रिप्लेसमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम बचा सकते हैं घुटनों को स्टेज 1 स्टेज 2 में, मतलब उनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। ये एज रिलेटेड डॉक्टर साहब जनरल दिक्कत क्या आती है? सीढ़ियां चढ़ते टाइम में लोगों को काफी घुटनों में पेन आता है। तो क्या वो सही समय है कि आपको रीच करें हम लोग? बिल्कुल करना चाहिए अप्रोच, बिल्कुल करना चाहिए। थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से घुटनों की लाइफ बढ़ा सकते हैं। जी यस थैंक यू। डॉक्टर साहब एक चीज पूछ रही थी कि रिप्लेसमेंट जब करा लेते हैं तो ये कितने समय तक ठीक रह सकता है? हाँ मैं वही बोल रहा था। एक तो पहली चीज ये इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है। सेकंड चीज 90% लोगों में ये देखा गया है कि घुटने जो है 15 साल से ज्यादा चलते हैं और 85% लोगों में 25 साल से भी ज्यादा चलते हैं। तो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, लेकिन वो 5% तो रहते ही है। लेकिन लाइक लक फैक्टर भी है उसमें जिनमें जल्दी खराब होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों में इट लास्ट लॉन्ग 15, 20, 25 years इट गोज। 25 years हो सकता है। आप खुद अपना एग्जांपल हो, 52 में आपने किया था, अभी 12 साल हो रहे हैं घुटने के आपके। हाँ मेरा वेट भी नहीं बढ़ा है ना डॉक्टर साहब। बहुत ही अच्छी चीज है सब। एक्चुअली कुछ रिसर्च पेपर है हमारे जिसमें ये बताया है कि पेशेंट को डायबिटीज था ऑपरेशन के पहले, डायबिटीज हाइपरटेंशन, वो कुछ काम नहीं कर पाते थे, वर्कआउट नहीं कर पाते थे, नी रिप्लेसमेंट हुआ उनका एंड आफ्टर दैट उनकी शुगर लेवल नॉर्मल हो गई, बीपी की दवाई बंद हो गई, वो अच्छे से एक्सरसाइज कर पाए, अपनी डेली का रूटीन अच्छे से कर पा रहे थे। जैसे आपने बताया आपका वेट कम हो गया। मेरे भी जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया था, जिनका फोटो दिया था, जिनका मैंने दोनों घुटने बदला था, वो पेशेंट का वेट अराउंड 80-85 था, शॉर्ट स्टेचर फीमेल थी। ऑपरेशन के बाद 20 से 25 किलो वेट कम हुआ है उनका, मतलब लाइक 3-4 महीने में। ऑपरेशन का भी स्ट्रेस रहता है बॉडी पे, लेकिन दैट वाज लाइक विन विन फॉर बोथ, नी के लिए भी और बॉडी के लिए भी। मोस्टली सभी का वेट बढ़ता ही है डॉक्टर साहब। मेरा तो वेट शुरू से ही नहीं था और वेट मैंने बढ़ने भी नहीं दिया। तो अभी मेरा 63 साल की 64 साल की हूँ तो मेरा 63 किलो वजन है। लेकिन हाँ ये सोच रही हूँ कि इनको आगे सेफली कैसे रख पाए, मतलब इनको कि डैमेज नहीं हो वापस। इसीलिए पूछना चाह रही थी कि इतना इनका समय कितना होता है? 20-25 साल हो सकता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अभी तक ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे मेंटेन कर रहे हैं तो पक्का चलेगा। और ये बात है। यस अच्छा, इसके बाद मेरे को बीपी का प्रॉब्लम हो गया था तो मेरी बहन डॉक्टर है, उन्होंने गोली दे दी टेलमिकाइंड H80, तो वो मेरा अभी तक मैं कंटिन्यू खा रही हूँ। छूट जाता है, छोड़ देती हूँ तो फिर माथा चक्कर और दर्द होने लगता है। और कोई शुगर हाइपरटेंशन कुछ भी नहीं है, खाली एक बीपी का दवाई चलता है। छोड़ दें अब इसको? नहीं, जो बीपी की दवाई है वो विद कंसल्टेशन यू जस्ट कंटिन्यू,
सडनली ये सब बंद नहीं होता है, अपनी बॉडी को उसकी आदत हो चुकी रहती है एक्चुअली। यदि आप नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। हम सोचते हैं कि मेरे को पहले था नहीं, तो अब हाँ। उसको छोड़ देंगे तो अच्छा कई बार रहेगा। एज रिलेटेड चेंजेस जैसे घुटनों में होते हैं वैसे हार्ट में भी होते हैं, वैसे अपनी ब्लड वेसल्स में भी होते हैं, तो कुछ ऑप्शन नहीं रहता, कई बार दवाई लेनी पड़ती है। 2-3 दिन छोड़ के चांस लेती हूँ, लेकिन डर लगता है फिर कुछ गड़बड़ी नहीं हो मत जाती। कीजिए ऐसा, मत कीजिए ऐसा, या तो चेकअप करवाते रहिए। मैंने देखा है पेशेंट्स को नाक से ब्लीडिंग के साथ एडमिट होते हुए, एकदम से स्ट्रोक आ गया उसके साथ एडमिट होते हुए, है ना। मत कीजिए ऐसा। बीपी की दवाई मतलब लाइक बीपी मॉनिटरिंग करते रहिए अपना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ वो करती हूँ, डॉक्टर हाँ। घर में ही कर लेती। वैसे ही चलने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, बहुत ही बहुत सुंदर धन्यवाद। जानकारी बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार चर्चा सत्र। ये चर्चा सत्र से काफी चीजें हमें नई नई बातें हमारे सामने आई। तो जो भी भाई बहन आज जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो आज नहीं जुड़ पाए हमारे साथ, मेरा सभी से निवेदन है, हमारा वीडियो चैनल पे आ जाएगा शाम तक, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो जानकारी हमें मिली है इससे हमारे परिजन भी इससे लाभान्वित हो पाए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समापन करना चाहेंगे। पुनश्च एमपी के फिटनेस क्लासेस और टीपीएफ नोएडा की तरफ से डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम।